Now continuing the chapter of periodic classification, today we will discuss the trend in the properties of the elements. Okay. Now how the elements properties they vary along the period as well as down the group. Okay. The first property today I will take is valency. Now what is valency? So valency is the combining capacity of an element to form molecules. Okay, that is called valency. Okay. Now I am writing the first 20 elements. The first period है that is containing hydrogen and helium. These are the two elements contained by first period. ये first period. Then second period. Second period starts from lithium and it goes till neon. So lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. The atomic number 1 hydrogen का, helium का 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay. And then third period. Okay. Third period starts from sodium, atomic number 11. Okay. Then magnesium, aluminium, कार्बन के नीचे सिलिकॉन 14 पे, okay, phosphorus 15, sulfur 16, okay, then chlorine 17, argon 18, okay. So these are the elements of third period. और फिर उसके बाद fourth period में, okay, we'll take only 2. मैं पहले 20 का लिख रही हूँ, तो potassium 19 पे और calcium 20 पे. So these are the first 20 elements. Now how can we know that what is the valency of each element? You write the configuration. Okay. अब configuration में hydrogen has only one electron, तो इसलिए in K shell equal to 1. So since it has only one electron and one is the electron in the valence shell. Valence shell जो मतलब outermost shell में जो electron है, that is the valency of the element. If element contains 1 or 2 electrons in its valence shell. Okay. If element has either 1 or 2 electrons in its valence shell, okay, then valency is always equal to number of electrons in the valence shell. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मतलब एक ही शेल है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और अगर इलेक्ट्रॉन एक है तो वैलेंसी विल आल्सो बी इक्वल टू 1. ओके, तो वैलेंसी इज 1. हीलियम, अब हीलियम इनर्ट गैस है. इनर्ट गैसेस की वैलेंसी जो है दैट इज ऑलवेज 0, क्योंकि फर्स्ट शेल में इट कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है. ओके, तो इनर्ट गैसेस जो है ये तीनों हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, तो दीज आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस. ओके, तो इनर्ट गैसेस की वैलेंसी ऑफ इनर्ट गैसेस is 0. Okay, because they have the completely filled shells, so they do not need any electron to be added or do not need any electron to be lost. Okay, so therefore their valency is always 0. So helium, neon and argon, all the three have valency 0. Okay, अब यहाँ पे आओ. Okay, lithium की configuration क्या है? 2 1. Okay, तो इसके पास valence electron 1 है. 1 valence electron, so valency is also 1. बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन 2 2, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है विच आर इन द आउटर मोस्ट शेल, मैं उसको सर्कल कर रही हूँ. तो दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, सो वैलेंसी आल्सो 2.
अब बोरोन 2 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आप ऐड कर एलिमेंट है आइदर 1 और 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देन वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी जो है वो कितनी हो जाएगी 3। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 2 4, 4 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से ज्यादा हो जाए, यहाँ लिख रही हूँ देखो, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4 or more than 4, then valency is equal to valence electrons is equal to 8 minus valence electrons। अब क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसलिए वैलेंसी क्या हो जाएगी 8 माइनस 4, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, तो वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 2 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी विल बी इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, तो 3 इसकी वैलेंसी है। अब ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन 2 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 8 माइनस 6 2। फ्लोरीन 9, 9 का मतलब 2 7 की कॉन्फ़िगरेशन है तो 7 पे तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी विल बी इक्वल टू 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। और नियॉन की 0 क्योंकि नियॉन एक इनर्ट गैस है। अब यहाँ से देखो आप सेकेंड पीरियड में लिथियम की वैलेंसी 1, बेरिलियम 2, बोरोन 3, कार्बन 4, यानी कि 1 से 4 तक इंक्रीज हो रही है वैलेंसी। फिर नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 1, नियॉन 0, फिर उसके बाद डिक्रीज होनी शुरू हो गई। मतलब इस पीरियड में 4 इज द मैक्सिमम वैलेंसी। तो फर्स्ट वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 टू 4 तक इंक्रीज हो रही है और 4 से फिर डिक्रीज होनी शुरू हो गई, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। तो इसलिए अलोंग द पीरियड हम क्या लिखेंगे कि व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 टू 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। इसी तरह से अभी हम ट्रेंड बनाते हैं, इसी तरह से आप इनको देखो थर्ड पीरियड में भी देखो, अब ओरली करते हैं। 2 8 1 इज द कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 तो वैलेंसी 1। 2 8 2 की कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, वैलेंसी 2। 2 8 3 की कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी 3। 2 8 4 की कॉन्फ़िगरेशन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 8 माइनस 4 4। 2 8 5 की कॉन्फ़िगरेशन है तो वैलेंसी 8 माइनस 5 3। 2 8 6 की कॉन्फ़िगरेशन है तो वैलेंसी 8 माइनस 6 2। 2 8 7 की कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंसी 8 माइनस 7 1 और इसकी 0। अब इसमें भी देखो 1 2 3 4 बढ़ रही है 1 से 4 तक और फिर कम होनी शुरू हो गई 3 2 1 0। फिर कम होने लग गई। तो इसका मतलब हम पीरियड में क्या कहेंगे, व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 and then decreases to 0. So this is our final result in a period. So when we move in a period, in a period from left to right,
valency first increases from 1 to 4 and then decreases to 0. फिर 0 पे आके डिक्रीज होने लग जाती है। तो इसका मतलब कि एक पीरियड में हम वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द नॉर्मल एलिमेंट्स, ओके, फर्स्ट सेकंड ग्रुप और लॉन्ग फॉर्म में 13, 14, 15, 16, 17, 18, ओके, जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे, ओके। तो लॉन्ग फॉर्म में हम सिर्फ फर्स्ट सेकेंड और 13, 14, 15, 16, 17, 18, ओके, 6 और 2 8 पीरियड्स को ही 8 ग्रुप्स को ही हम फॉलो कर रहे हैं, ओके। तो इसलिए नॉर्मल एलिमेंट्स के केस में 4 मैक्सिमम वैलेंसी है, क्या, और वो कौन से ग्रुप की है, 14th ग्रुप की, कार्बन वाली फैमिली की। कार्बन फैमिली मीन्स 14th ग्रुप, ओके। तो इसकी वैलेंसी मैक्सिमम है 15th की 3, 16 की 2, 17 की 1, 18 की 0, ओके। ऐसे ही फर्स्ट ग्रुप की 1, सेकेंड ग्रुप 2, 13th ग्रुप 3, ओके, इस तरह से। तो when we move in a period, valency first increases from 1 to 4, then decreases to 0, okay? अब ग्रुप में देखो, अब ये तीनों एलिमेंट एक ही ग्रुप के हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब पोटेशियम का 19 नंबर है, तो 2, 8, 8, 1, okay? कैल्शियम 2, 8, 8, 2, okay? अब यहाँ देखो, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन भी अगर फर्स्ट में लेते हैं तो देखो सबकी वैलेंसी 1 है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 ही वैलेंसी है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 ही वैलेंसी है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 ही वैलेंसी है। तो ऑल द एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो ऑल द एलिमेंट्स हैव सेम वैलेंसी, ओके। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑल द एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड दे हैव सेम वैलेंसी, ओके। There is no change in the valency of the elements belonging to same group. इसी तरह से बेरिलियम 2, मैग्नीशियम 2, कैल्शियम 2, तीनों की वैलेंसी 2 है, okay? तो इट मीन्स दे ऑल बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स की वैलेंसी 2। 13th ग्रुप बोरॉन, एल्यूमिनियम बिलोंग टू 13th ग्रुप, दोनों की सेम वैलेंसी है 3। कार्बन फैमिली, कार्बन एंड सिलिकॉन दोनों की सेम वैलेंसी है। तो एक फैमिली मतलब एक ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे उनकी वैलेंसी सेम होगी। इसी तरह से नाइट्रोजन फैमिली वैलेंसी 5, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बोथ, ओके। ऑक्सीजन एंड सल्फर बोथ आर शोइंग द वैलेंसी 2, फ्लोरीन एंड क्लोरीन बोथ आर शोइंग द वैलेंसी 1, ओके। तो इसलिए एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड दे हैव द सेम वैलेंसी, ओके। तो वैलेंसी डज नॉट चेंज इन अ ग्रुप, ये तो पीरियड में था, ओके। सो नाउ वैलेंसी डज नॉट चेंज इन अ group. All the elements belonging to the same group have same number of valence electrons and they have same valency. So valency does not change in a group. All elements belonging to same group have same number of valence electrons and thus same valency. Okay. For example, all first group elements कौन कौन से हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। All first group elements have valency 1.
all second group elements have valency 2 and so on. Okay, so this was a gradation in valency. Okay, the first property थी how valency changes when we move in a period and in the group. Okay, now the second property, okay, and that is how the atomic radius. Okay, what about the atomic radius? Atomic radius or atomic size. Okay. What is the atomic radius? So, atomic radius is the distance between the center of the nucleus and the valence shell of an isolated atom. So that distance is known as atomic radius. देखो क्या मीनिंग है इसका. Let it be this is a nucleus. क्या ये इसका सेंटर है. Okay. अब the element has one shell. अब ये let it be hydrogen. क्योंकि hydrogen has only one electron and that is in the first shell. अब ये जो सेंटर है न्यूक्लियस का यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है, okay? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से शेल का डिस्टेंस. okay? एक ही शेल है तो ये रेडियस. अब अगर किसी एलिमेंट के पास दो शेल है तो ये फर्स्ट, okay? लेट इट बी लिथियम. okay? 2 electron in the first shell and 1 electron in the second shell. okay? ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 1 इलेक्ट्रॉन है. तो अब इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये सेंटर से लेके और यहाँ तक, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल. okay? जितने भी शेल है, एक शेल है तो एक शेल तक का, 2 शेल है तो 2 शेल, 3 शेल होंगे तो 3 हो जाएंगे. okay? तो फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल इज ऑल्सो नोन एज द वैलेंस शेल. तो इसलिए इस डिस्टेंस को आइसोलेटेड एटम, मतलब एटम जब अकेला है, अगर एटम के साथ कोई और है, ठीक है, यहाँ एटम मतलब जैसे NaCl है, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिल के बॉन्ड बना रहे हैं, तो आइसोलेटेड मतलब अकेला जब एटम है तो उन दोनों के वैलेंस शेल और सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं. अब सिंस एटम इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत ही छोटा साइज है, माइक्रोस्कोपिक है, तो जब एटम छोटा है तो साइज भी छोटा होगा. तो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन पिकोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है, स्मॉल टर्म्स में हम इसको मेजर करते हैं. तो एटॉमिक रेडियस is measured in picometers, nanometers, मतलब और नैनोमीटर, पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर. ठीक है, नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻9 मीटर. ठीक है, और एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर. ओके, तो ये दीज आर द मेजरमेंट टर्म्स जिसमें हम रेडियस को मेजर करते हैं. okay? देखो फॉर एग्जांपल, एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम
37 पिकोमीटर। तो ये इसका रेडियस है। तो अब देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ रेडियाई, कोवेलेंट रेडियस है, मेटालिक रेडियस है, वॉन डर वाल रेडियस है, आयनिक रेडियस है, कई टाइप्स के हैं। लेकिन अभी 10th में यू विल स्टडी अबाउट जनरल में हम पढ़ेंगे, फिर ये सीनियर क्लासेस में यू विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ रेडियाई। तो दिस इज अब हाउ द रेडियस चेंजेस, कैसे चेंज होता है इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप। अब पीरियड में फिर हम उसी तरह से सेकेंड और थर्ड पीरियड की बात करेंगे। तो दिस इज variation of atomic radius in a period. Again I am writing the second period and the third period. अब second period कहाँ से स्टार्ट होता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। और थर्ड पीरियड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। अब जीरो ग्रुप गैसेस या इनर्ट गैसेस जिसमें नियॉन एंड आर्गन है, ये डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं क्योंकि इनमें जो है इनमें वॉन डर वाल रेडियस है। वो मैं आपको अभी बाद में डिस्कस करूंगी। तो अभी हम सिर्फ यहाँ तक करेंगे। जीरो ग्रुप को हम छोड़ रहे हैं। तो वी विल टॉक अबाउट ओनली फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन एंड सोडियम टू क्लोरीन। हम जीरो ग्रुप गैसेस की अभी बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है। व्हेन वी मूव इन अ पीरियड, पहले मैं सेकेंड पीरियड का केस ले रही हूँ। कॉन्फ़िगरेशन अगेन 2-1 की, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 और 2-7। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 है। 4 प्रोटॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-2। 5 प्रोटॉन्स है तो 5 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2-3। 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन तो 7 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल एटम्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप देखो यहाँ से जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो एक एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है। इसमें 3 प्रोटॉन है, इसमें 4 हो गए, इसमें 5 हो गए, तो 1 प्रोटॉन इज बीइंग एडेड। और प्रोटॉन कहाँ रिजाइड कर रहे हैं? दे रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है, हम कहते हैं कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। वाई न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे बोथ रिजाइड। अब न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, उनका कोई चार्ज नहीं होता। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स। इसीलिए हम प्रोटॉन्स के चार्ज को न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज मीन्स कि चार्ज कैरिड बाय द प्रोटॉन्स, और चार्ज कैरिड बाय न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का चार्ज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स है, तो इसलिए जो प्रोटॉन्स का नंबर होगा वही उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो अब न्यूक्लियस का चार्ज एक एक यूनिट से बढ़ रहा है जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का शेल का नंबर चेंज नहीं हो रहा। पहले शेल में तो सब में 2 है ईच एलिमेंट, लेकिन सेकेंड शेल में इसमें 1 है, इसमें 2 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया,
फिर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहा है बट विद इन द सेम शेल। ओके, शेल का नंबर नहीं बढ़ रहा, तो उसी शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है। ओके, तो ऐसे में क्या होगा कि न्यूक्लियस के अंदर चार्ज बढ़ रहा है, ओके, और आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल, दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रोटॉन ने 3 इलेक्ट्रॉन को खींचना है। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में है, यहाँ 4-4 के बीच में हो गई, यहाँ 5-5 के बीच में होगी। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं आउटरमोस्ट शेल में। ओके, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब फोर्स बढ़ेगी, अट्रैक्टिव फोर्स, तो साइज क्या होता जाएगा, साइज विल कीप ऑन बिकमिंग स्मॉलर। ओके, तो जब हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ मूव करेंगे, टिल फ्लोरीन ओनली, नियॉन को कंसिडर नहीं करना। ओके, तो टिल फ्लोरीन, तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। So when we move in a period from left to right, okay, then atomic size decreases. और same is the case in this sodium to chlorine. तो यहाँ से भी हम जब इधर मूव करेंगे तो atomic size decreases. अब रीजन क्या लिखोगे आप? देखो रीजन इसका क्या रखेंगे, when we move in a period from left to right, nuclear charge increases by 1 unit successively. Number of electrons also increase by 1 unit successively. Okay, but number of shells remain same. So we can say that within the same shell the number of electrons are increasing. Okay, that is within the same shell. शेल का नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा, number of electrons increase. Okay, hence the, अब यहां से मैं इधर लिख रही हूं, यहां पे, यहां इधर लिख लेती हूं, चलो, hence the effective force of attraction between the nucleus and the valence shell increases. Valence shell electrons increases. Okay, तो जब force of attraction increase होगी, therefore size decreases. तो साइज जो है वो कम होता जाएगा। तो साइज की अगर हम वेरिएशन को चेक करें कि साइज कैसे वेरी करेगा, तो साइज लिथियम का 152 पिकोमीटर है। ठीक है, और अगर हम बेरिलियम पे आए तो बेरिलियम का साइज जो है
वो 111 है, ओके। और बोरोन 88, कार्बन 77, 111 पिकोमीटर, बोरोन 88 पिकोमीटर, कार्बन 77 पिकोमीटर, ओके। और नाइट्रोजन का जो साइज है, नाइट्रोजन का साइज आपका आएगा 74 पिकोमीटर, ऑक्सीजन 66, ओके। नाइट्रोजन 74, ऑक्सीजन 66 पिकोमीटर, ओके। ऑक्सीजन का और कम हो गया। और ऑक्सीजन से जब आप फ्लोरीन पे जाओगे तो फ्लोरीन का साइज और कम हो जाएगा, ओके। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइज डिक्रीजेस व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। तो साइज कम हो रहा है जैसे जैसे हम उसमें जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन का अप्रोक्सीमेट 64 पिकोमीटर है फ्लोरीन का, ओके। तो 64 पिकोमीटर, तो लाइक दिस। तो साइज डिक्रीजेस, okay, when we move in a period from left to right, okay. So that is because of the reason I have told you कि why it decreases, okay. Same is the case when we move from sodium to chlorine, okay. इसी तरह से, क्योंकि सोडियम से क्लोरीन में भी नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, शेल में चेंज नहीं आई, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है दे आर बीइंग एडेड इन द सेम शेल, ओके। उसी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, सोडियम में 11, इसमें 12, ओके। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 281, इसकी 282, ओके, 283। देखो लास्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, फर्स्ट दो शेल में तो सेम है इलेक्ट्रॉन, ओके। इसमें 284, 285, 286 और 287, ओके। तो वन इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड इन द वैलेंस शेल, ओके। और ऐसे चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17। तो चार्ज भी ऐड हो रहा है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो बीइंग एडेड बाय 1 यूनिट सक्सेसिवली। तो हेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, ओके। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो साइज डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड, ओके। तो कम होता जाएगा। और इसमें इसका मतलब हम जनरल में कह सकते हैं, इसको छोड़ दो, अब मैं पहले बार बार कह रही हूँ अपने जीरो ग्रुप को हम कंसिडर नहीं कर रहे, तो जनरल में हम कह सकते हैं कि अपने पीरियड में, ओके, एल्कली मैटर इज द बिगेस्ट एलिमेंट एंड हेलोजन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ओके। सेकेंड पीरियड में लिथियम बिगेस्ट है, फ्लोरीन स्मॉलेस्ट। थर्ड पीरियड में सोडियम बिगेस्ट है, क्लोरीन स्मॉलेस्ट। तो एल्कली मैटर इज द बिगेस्ट एलिमेंट and halogen is the smallest element in its period, okay. तो ये पीरियड में ट्रेंड है। अब इसी तरह से हम ग्रुप में देखते हैं कि हाउ द साइज वेरीज इन द ग्रुप। So I take the case of the first group element, hydrogen, lithium, sodium, potassium। पहले 4 एलिमेंट्स का लेते हैं, ठीक, क्योंकि 20 तक यही 4 एलिमेंट आ रहे हैं। हाइड्रोजन के पास 1, तो एक ही शेल है, ये न्यूक्लियस है और उसके पास एक शेल है, ठीक। लिथियम 2 1 की कॉन्फ़िगरेशन है, 2 शेल हो गए, ठीक। तो ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम की 281 की कॉन्फ़िगरेशन है, 3 शेल्स, ये सेंटर में न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और फिर 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो नंबर ऑफ शेल्स हैव बिकम 3 नाउ। और पोटेशियम के पास 2881, ओके। तो ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, फिर 8 और फिर उसके बाद लास्ट में 1, ओके। तो आपको यहीं से पता लग रहा है, देखो जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ता जा रहा है साइज बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि साइज तो आउटर मोस्ट शेल से इसके बीच का है, डिस्टेंस है। तो इसमें एक ही शेल है, इट हैज 2, इसके 3 हो गए, इसके 4 हो गए, तो शेल बढ़ रहे हैं,
तो शेल बढ़ रहे हैं तो साइज बड़ा होता जाएगा। ओके, तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। ओके, तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप in the periodic table, since one shell is being added successively, एक शेल ऐड हो रहा है सक्सेसिवली, इसमें 1 फिर 2 3 4 5 so on, one shell is being added successively. Okay, so size increases. देखो कई बच्चे कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है। okay? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 11 हो गए, 11 ही प्रोटॉन है। okay? यहाँ पे 19 प्रोटॉन हो गए, चार्ज भी बढ़ रहा है। okay? न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग बट द इलेक्ट्रॉन नंबर आर ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है दैट इज स्प्रेडिंग। okay? तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो इफेक्ट है, द स्प्रेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड दैट इज मच मोर एज कंपेयर टू द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर पुल। ओके, तो न्यूक्लियर पुल किसके कारण है? दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो चार्ज के कारण जो पुल है okay, वो पुल कर रहा है अपनी तरफ, बट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड विच आर बीइंग एडेड इन द एक्स्ट्रा शेल, मतलब जो एक नए शेल में ऐड हो रहे हैं, तो दैट इज मच मोर एज कंपेयर टू द न्यूक्लियर चार्ज। ओके, सो दैट्स व्हाई द साइज इंक्रीजेस। तो वन शेल इज बीइंग एडेड सक्सेसिवली, सो साइज इंक्रीजेज इन अ ग्रुप। तो अगर ग्रुप में हम मूव करेंगे तो हाइड्रोजन छोटा है, फिर लिथियम उससे बड़ा, सोडियम और बड़ा, पोटेशियम और बड़ा। कैसे? अगर और नीचे जाओगे तो रुबीडियम, सीजियम। ओके, तो इसका मतलब कि फर्स्ट ग्रुप में सीजियम के नीचे फ्रेंशियम है। ओके, तो फ्रेंशियम सबसे बड़ा एलिमेंट है, लेकिन फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है। तो अगर एल्कली मेटल्स आपको पूछे कि विच इज द बिगेस्ट एल्कली मेटल, तो एल्कली मेटल में बिगेस्ट सीजियम है। ओके, और स्मॉलेस्ट एल्कली मेटल लिथियम। हाइड्रोजन को नहीं लेंगे, फिर हाइड्रोजन इज नॉट एन एल्कली मेटल। तो स्मॉलेस्ट एल्कली मेटल लिथियम एंड बिगेस्ट एल्कली मेटल सीजियम। लेकिन अगर फर्स्ट ग्रुप लें तो हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड द फ्रेंशियम इज द बिगेस्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। ओके, तो मतलब आपने ध्यान से देखना है क्वेश्चन में उसने एल्कली मेटल पूछा है या ग्रुप में पूछा है। ओके, तो ग्रुप में तो पहला हाइड्रोजन सबसे छोटा फर्स्ट ग्रुप में और फ्रेंशियम सबसे बड़ा, लेकिन एल्कली मेटल्स में लिथियम सबसे छोटा एल्कली मेटल और सीजियम सबसे बड़ा एल्कली मेटल। ओके, तो दिस इज हाउ, तो दिस वाज द साइज, कि साइज कैसे वेरी करता है एक पीरियड में और एक ग्रुप में। ओके, तो इतना तो अब आपका जो बोर्ड से रिलेटेड था। साइज को हम थोड़ा सा और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे, तो एटॉमिक साइज के ऊपर फिर देन इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द व्हाट इट कम्स इन द कॉम्पिटिटिव लेवल पे। ओके, तो वन वीडियो आई विल गिव यू ऑन द साइज ओनली। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। इट्स ओके फॉर टुडे। ओके।